आइडियाज़ दिखाते हैं और वहाँ से जो बिजनेसमैन लोग आते हैं दूसरे कंट्री से वो ख़रीदते भी हैं और बाकायदा यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाने को भी तैयार हो जाते हैं। हमारे इंडिया और पाकिस्तान की खूबसूरती ये है, यहाँ पब्लिक बहुत है, जॉब्स नहीं है, हुनरमंद लोग बहुत हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मेरे साथ मौजूद हैं रोज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, भूल जाती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। चलें फिर हम आज सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, बाद में बात करेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो का टाइटल है एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द टाइटल एडिशन ऑफ वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट। गुजरात में एक सबमिट हो रहा है, 13 घंटे पहले वीडियो डली है ये, तो जिसका नाम है वाइब्रेट गुजरात। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है, किस तरह की गहमा गहमी है। वर्ल्ड ग्लोबल, हाँ ग्लोबल का मतलब पूरी दुनिया से लोग आएंगे वहाँ पे, लीडर्स आएंगे, इकोनॉमिकली लोग आएंगे, बिज़नेस के हवाले से इनके मुल्क में बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। तो इन्होंने किस तरीके से उसका सिस्टम तैयारी क्या की हुई है उसको देखते हैं। मेरे ख्याल में यही होगा, तो देखते हैं वीडियो को से फिर। गेम शो गुजरात। वेल आज तो यहाँ कुछ अलग ही वाइब है। द होल स्टेट इज डेक्ड अप लाइक अ ब्राइड। और हो भी क्यों ना, well, we are celebrating the 10th edition of Vibrant Gujarat Global Summit. ગાંધીનગર માં તમારું સ્વાગત છે। थिंकिंग बिग इज द फर्स्ट स्टेप टू मेकिंग अ बिग इम्पैक्ट। इसी थॉट से भारत के इस स्टेट ने शुरुआत की एक ऐसे इनिशिएटिव की जो बाकी सारे स्टेट्स के लिए एक मिसाल बनकर रह गई। 2003 में शुरू हुआ वाइब्रेंट गुजरात इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जब वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। इस समिट का मकसद हमेशा से ही रहा है दुनिया भर के बिजनेस लीडर्स, इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेशंस, थॉट लीडर्स, पॉलिसी एंड ओपिनियन मेकर्स को एक साथ लाकर गुजरात के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अंडरस्टैंड और एक्सप्लोर करें। Well, cut to 20 years from the time it started, Gujarat एक growth और innovation का perfect example है and is one of the most dynamic states for investment. In fact, Gujarat contribute करता है 8.3% to India's GDP, making it the growth engine of India. तो क्या हो रहा है in this edition of Vibrant Gujarat Summit? Let's find out. वैसे मैं आपको बता दूं that Curly Tales is the Well, so today is the big day when the 10th edition of Vibrant Gujarat Global Summit is going to be inaugurated by our Prime Minister Narendra Modi ji. And as you can see, आज बहुत ही tight security है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं. This is happening at Mahatma Mandir Convention and Exhibition Center. This area is span across 2 lakh square meters
यहाँ पर 13 halls हैं and each hall is dedicated to a specific theme. Right now I am at Garvi Gurjari, which actually promotes the handloom and handicraft of Gujarat, be it the mud mirror work, the pichwai painting, the Zardosi sari weaving, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर. Vibrant Gujarat Global Summit 2024 का theme है Unlocking the Gateway to the Future. And this two-day event showcases how various sectors are contributing to the Prime Minister's vision of Vikshit Bharat 2047. Prime Minister Narendra Modi and dignitaries from different countries along with corporate head honchos like Mukesh Ambani, Gautam Adani, Nikhil Kamath all addressed the audience announcing that they are going to work towards the Gujarat growth story. Reliance has invested over $150 billion, that is 12 lakh crores, in creating world-class assets and capacities across India in the last 10 years. Of this, more than 1/3 has been invested in Gujarat alone. Over the next 5 years, the Adani Group will invest over rupees 2 lakhs crore in Gujarat. Today, when I talk to Indians in the West who have done very well, the only thing I hear from them, it's a very young word. I call it FOMO, the fear of missing out. They're talking about India as the story that they fear missing out today. That change which has happened in the last 10 years is so evident to see that it makes me feel proud. It makes me feel like I'm in the right place at the right time, and that place today is India. और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सपने मोदी का संकल्प है. आपके सपने जितने बड़े होंगे, मेरा संकल्प भी उतना ही बड़ा है. आइए, सपने देखने के अवसर अनेक हैं, संकल्प पूरा करने का सामर्थ्य भी मौजूद है. As you can see, यहाँ कई सारे seminars हो रहे हैं across various exhibition halls, and the theme for each of these seminars spans across technology, innovation, oil and gas, gems and jewelry, infrastructural development. Essentially, the summit brings together international as well as domestic investors and understand how Gujarat as a state can be scaled, and this model can be emulated by the rest of India to become the growth engine. Well, I must say, the Vibrant Gujarat Global Summit showcases Gujarat's entrepreneurial spirit. और ये summit सिर्फ एक celebration नहीं है, बल्कि एक open invitation है to everybody out there to witness and to contribute to Gujarat's growth story. So इसी तरह मैं आपके लिए गुजरात और इंडिया के बाकी सारे states की development की stories लाती रहूंगी. Until next time, it's me Kamya Jani from Curly Tales signing off. जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त. काफ़ी दिनों से इसके हवाले से वीडियोस देख रहे थे, सुन रहे थे कि वाइब्रेंट सबमिट हो रहा है गुजरात में, और कुछ दिन पहले पता भी चला था कि यूएई के प्रिंस भी आए हुए हैं और बाकायदा गुजरात की गलियों में घूमे और रोड शो भी हुआ था. तो कुछ आपको क्या लगा ये सारी वीडियो देख के कि इस तरह के इवेंट से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या है, बताएं ज़रा. मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये वाले जो इवेंट्स इस तरह के जो होते हैं, लोगों को एक मौका दिया जा रहा है कि एक तरीके से कि आपके पास जो हुनर है, आप जो काम करना चाहते हैं या कुछ भी है, तो आप यहाँ पर आएँ, अपना बताएं कि मैं ये मतलब काम करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ. तो इस वजह से ना आवाम को एक फ़ायदा है. बहुत अच्छा इन्होंने किया है ये इवेंट करके, क्योंकि इसमें 35 कंट्रीज़ के लोग आ रहे हैं, तो वो इन्वेस्ट भी करेंगे. से बात है, इन्वेस्ट करेंगे जैसे कि सर ने बोला. तो ये आवाम जो हम मतलब जो छोटी मोटी जो जैसे गरीब मिडिल क्लास लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बिजनेस फ़ायदा है. खुलता है. बिजनेस के लिए उन्होंने दिया हुआ है.
कि मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा देखकर कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बड़े से बड़ा ही कोई अमीर तरीन जो होगा वही बिज़नेस कर सकता है, वही काम कर सकता है। मतलब इन्होंने एक छोटे मिडिल क्लास को भी मौका दिया हुआ है कि आप इसमें काम कर सकते हैं आगे। बिल्कुल। मतलब जो भी वो कुछ लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता, एक आइडिया होता है, दिमाग उनके पास होता है, उनके पास पैसा तो वो लोग नहीं आके होता, तो अपनी चीज़ें दिखा सकते हैं। बाकायदा यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज सबमिट हो रहा है जिसमें बाकायदा एक बहुत सारे इसके अच्छा एक दिन का नहीं होता ये 2-4 दिन का होता होगा। हाँ, यानी मतलब एक दिन ये हुआ, एक दिन टेक्निकल के हवाले से सही, हुआ, सही, टेक्सटाइल के हवाले से एग्जीबिशन भी यहाँ होनी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस दिन फिर अपने हिसाब से लोग अपनी चीज़ें दिखाते हैं, अपने आइडियाज़ दिखाते हैं, और वहाँ से जो बिजनेसमैन लोग आते हैं दूसरे कंट्री से वो ख़रीदते भी हैं और बाकायदा यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाने को भी तैयार हो जाते हैं। हमारे इंडिया और पाकिस्तान की खूबसूरती ये है, यहाँ पब्लिक बहुत है, जॉब्स नहीं है, हुनरमंद लोग बहुत हैं, काम करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बेचारों के पास पैसा भी नहीं है, इन्वेस्ट करने। जिनके पास दिमाग है तो उनके पास पैसा नहीं है। वो कहते हैं यार मेरे पास पैसा तो मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, बट वो बेचारा पीछे इसलिए रह जाता है उसके पास पैसा नहीं है। तो ये एक मौके होते हैं कि यहाँ इन्वेस्टर आते हैं, आपके ऊपर पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन शर्त ये हो कि आपका आइडिया में दम हो, आपके पास जो थीम है, आप जो करना चाहते हैं उसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू हो कि हाँ भाई वाकई वो वायरल होगा, वो चीज़ चलेगी, वो प्रोडक्ट बिकेगी, या उस प्रोडक्ट की दुनिया को ज़रूरत है, आपके आइडिया में इतना दम हो। तो मतलब यूँ समझ लें कि ये चीज़ें जो है ना, ये किसी कंट्री की तरक्की को बूस्ट देती हैं, ये किसी कंट्री की तरक्की में धक्का देती हैं कि यार कंट्री तरक्की कर रहा है, इस तरह के इवेंट से एक पुश लगता है तो और तेज़ी से तरक्की करता है। और हम देख रहे हैं कि इंडिया यूँ समझ लें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बहुत ज़्यादा, जैसा कि हम रोज़ाना रेगुलर देख रहे हैं ना, बहुत माशाल्लाह बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और कहते हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है ना इस वक्त किसी कंट्री की नहीं है। यानी स्पीड, जिस स्पीड से, यानी अमीर तो एक 4-5वें नंबर पे है, लेकिन एक होता है ना कि हर महीने, चौथे महीने, तीसरे महीने में कितनी ग्रोथ की, वो जो ग्रोथ की स्पीड है ना वो इस वक्त दुनिया में अमेरिका, यूरोप सबसे तेज़ है इनकी। वजह इंफ्रास्ट्रक्चर, वजह पॉलिसियाँ, वजह मेहनत, वजह ईमानदारी, वजह अपने काम से लगन, और सबसे बड़ी वजह है मोदी जी। वो इतना साथ दे रहे, मुझे बहुत पसंद आ रहे मुझे, मतलब मैं उनको सल्यूट करती हूँ और मतलब मैं तो अप्रिशिएट करूँगी। अभी आपने उनको जाना ही नहीं है, अभी तो आप देखेंगे उनकी बातें तो आप यकीन करें, आप कहेंगे कि काश, यकीन करें, आप कहेंगे काश इनका 1% भी कोई पाकिस्तान में आ जाए, 1%। मैं आपको बताऊं इतने ईमानदार अपने काम, अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। मोदी जी को मैं सलाम करती हूँ कि उन्होंने इतना सोचा, वो लोगों के लिए बहुत सोच रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है देख कर कि यार इतने आइडियाज़, इतने मतलब जो छोटे मुल्क को ऊपर से ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर से ऊपर लेके जा रहे हैं, वो अपना समझ रहे हैं सबको। बिल्कुल। अभी आप वीडियो के दरमियान में बोल रही थी कि वो सही कर रहे हैं तो इतने अरसे से हैं। बिल्कुल मैंने यही बोला था कि वो देखिए मतलब राइट है, वो अच्छा सोच रहे हैं दूसरों के लिए, मतलब वो दूसरों को सबको मतलब समेट के, एक माँ नहीं होती जैसे सारे बच्चों को लेके चलना चाहती है, वो कहते हैं कि सब मतलब जो गरीब है ना वो भी सही मतलब मेरे साथ चलें, तो वो सबको लेकर चल रहे हैं अपने साथ, सबको ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहते हैं, इसलिए वो वहाँ पे टिके हुए हैं। वो आप लोग उनको पसंद करते हो, वो आपका साथ देते हैं, इसलिए वो वहाँ पर है। बहुत तरक्की थी, मैं तो यही बोलती हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।